ہم زیادہ سے زیادہ زور دے رہے ہیں یا تو آکسیجن کنسنٹریٹرز پر، یا تو آکسیجن سپلائی پر، یا تو انفراسٹرکچر پر جو ہے حکومت کی پکڑ ہو رہی ہے کہ کئی جگہوں پر جو ہے ہندوستان میں ان اویلیبلٹی آف آکسیجن ہے، یا آکسیجن کنسنٹریٹرز ہیں، یا فار ایگزامپل ان اویلیبلٹی آف بیڈس ہیں. تو انہی چیزوں کے بارے میں میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے، اور سوشل سرکلز میں بھی زیادہ تر انہی چیزوں پر بات ہو رہی ہے. بہت کم بات ہوتی ہے یعنی کہ کووڈ-19 کا جو ہے امپیکٹ لوگوں کے ذہن پر کیا ہو سکتا ہے، اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا میں بھی بہت کم بات ہو رہی ہے، یا اس لیول پر نہیں ہو رہی ہے جس لیول پر ہونی چاہیے تھی. تو بحیثیت کلینکل سائیکولوجسٹ میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ اس وقت جو پینڈیمک اس وقت جو چل رہا ہے کووڈ-19 کا پینڈیمک، تو یہ ایک انسان کی صرف یعنی اس کی فزیکل ہیلتھ پر ہی اثر نہیں ڈالتا ہے، بلکہ اس کا اثر سیدھا جو ہے ایک انسان کی ذہنیت پر، ایک انسان کی دماغ پر، ایک انسان کی ذہن پر یعنی مائنڈ پر پڑ سکتا ہے. اور پڑ سکتا کیا پڑ رہا ہے دن بدن. دیکھ لیجیے جس ریپیڈیٹی کے ساتھ جو ہے اس وائرس نے اپنا پھیلاؤ شروع کیا، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال لگ بھگ جنوری فروری کے اراؤنڈ ایسے رپورٹس کہتے ہیں کہ ووہان سٹی سے شروع ہوا تھا چائنا کی، تو وہاں سے سٹارٹ ہو کے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اور اس وقت جو ہے یعنی اس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے اکثر مین سٹیز جو ہیں ان میں یہ اس کی ایک سیکنڈ ویو چل رہی ہے، جو یعنی انڈین ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو اس ریپڈ یعنی کہ جس لیول پر یہ پھیل گیا، اور جس لیول پر یہ ایک سینس آف ہیلپ لیسنس چھا گئی لوگوں کے ذہن پر اس کی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے ایک انسان کی ذہنیت پر پڑتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں یعنی انگزائٹی، ڈپریشن، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جیسے سمٹمز پیدا ہو سکتے ہیں. انسومنیا جیسا یعنی نیند کا بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو جانا، یا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی یہ سب چیزیں پائی جا سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہے پاپولیشن جو آلریڈی ہیومن پاپولیشن جو ہے کافی مشکلات ان کو درپیش ہیں. تو یہ چیلنج یعنی مینٹل ہیلتھ چیلنج جو ہیں، یہ ان کی مشکلوں میں اور زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یعنی جس لیول پر ہم فزیکل ہیلتھ کے بارے میں اس وقت بات کر رہے ہیں، یا فزیکل ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو انفراسٹرکچر چاہیے، جیسے آکسیجن کنسنٹریٹرز چاہیے، یا فار ایگزامپل آکسیجن سپلائی چاہیے، بیڈس چاہیے، اسی لیول پر شاید ہمیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کو بھی کیٹر کرنا چاہیے، یا ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم یعنی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ریلیٹڈ بات نہیں کرتے ہیں، تو شاید ایک ایڈڈ برڈن ہوگا پاپولیشن پر، جس کو ہینڈل کرنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک بار یعنی کہ جنرل پاپولیشن میں یہ سب ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، تو یہ ان کی ایفیشنسی کو اور زیادہ ریڈیوس کرے گا. جبکہ اس وقت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ ہونے کی ضرورت ہے ذہنی طور پر. they should be able to solve their problems efficiently. لیکن اگر ان کا ذہن جو ہے متاثر ہوا فار ایگزامپل ڈپریشن کی وجہ سے، یعنی اینگزائٹی ڈس آرڈرز کی وجہ سے، تو وہ شاید کلیئرلی نہیں سوچ پائیں گے کہ ان کو جو کووڈ-19 چیلنج دے رہا ہے، ان چیلنج کا سامنا کیسے کرنا ہے. تو اسی لیے بحیثیت کلینکل سائیکولوجسٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جس لیول پر ہم فزیکل ایلمنٹس کی بات کر رہے ہیں، نمونیا کیسے روکا جا سکتا ہے، کووڈ-19 کیسے روکا جا سکتا ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ کیسے روکا جا سکتا ہے، یا اپنے آپ کو کیسے کووڈ-19 سے بچایا جا سکتا ہے، اسی لیول پر جو ہے ہمیں کووڈ-19 کے ریلیٹڈ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں جنرل پاپولیشن میں، ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے وہ ایشوز
जनरल पॉपुलेशन में जो यानी कि जनरल पॉपुलेशन को दरपेश हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हम देख सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में इस वक़्त है। यानी कि हर रोज़ हम जब न्यूज़ देखते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़ कि इतने लोग मर गए, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं हर रोज़, तो ये ज़हन पर अपना एक नेगेटिव असर डालता ही है। तो इसकी वजह से जो है पूरी पॉपुलेशन जो है स्ट्रेस में है, और ये स्ट्रेस जो है ये यानी कि ज़हन पर बहुत ही बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि यानी कि हर एक इंसान जो है जनरल पॉपुलेशन में हर एक इंसान मुख्तलिफ तरीके से इस कोविड-19 के इफ़ेक्ट को अपने ज़हन पर लेता है। इट डिपेंड्स ऑन कि मतलब ये कितना रैपिडली उनकी लाइफ़ में आया, या कितनी इंस्टेबिलिटी यानी इस कोविड-19 ने उनकी लाइफ़ में पैदा कर दी। उनकी पर्सनल लाइफ़ में कितने रिस्क्स पैदा हुए, उनकी फैमिली में कितना रिस्क पैदा हुआ, या इसी तरीके से उनके आस-पड़ोस में कितना रिस्क इसने पैदा किया, उनकी एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ा, उनकी यानी कि सोशल लाइफ पर क्या असर पड़ा। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं, ये कुल मिलाकर एक इंसान की ज़हनियत को अपने-अपने हिसाब से जो है मुतासिर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब यानी कि इस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से, ये कोविड-19 जो है एक ट्रॉमेटिक इवेंट है। इस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से जो है ख़ुसूसतन इसका असर जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन पर पड़ता है। वल्नरेबल पॉपुलेशन से मेरी मुराद बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है ये ज़्यादा यानी कि इनको ज़्यादा रिस्क होते हैं डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस करने के। इसके अलावा एक इंसान को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट में कोई मेंटल हेल्थ इश्यू ऑलरेडी रहा हो, या पास्ट में उसने कोई किसी किस्म का नुकसान ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में पाया हो, मिसाल के तौर पर उसका कोई करीबी रिश्तेदार ऑलरेडी गुज़र चुका था किसी और मर्ज़ की वजह से, और उसकी वजह से ऑलरेडी घर में इंस्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी पैदा हो चुकी थी। उसके बाद यानी कि उसमें उतने इमोशनल रिसोर्सेज़ नहीं रहते हैं ताकि वो इस ट्रॉमेटिक इवेंट को जो है हैंडल कर सके, या इस चैलेंज को जो है डील कर सके। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर में किसी बंदे का यानी चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल या इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, तो ऐसे बंदे भी जो हैं कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, और उसकी वजह से उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी अमराज़ के होने का खतरा या खदशा लाहक रहता है। तो इसी तरीके से उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या रहता है, यानी कि इंसान का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी लिटरेसी कितनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग अब्यूज़ कर रहा था पहले कभी, तो ये भी एक इंसान को जो है मुख्तलिफ ज़हनी अमराज़ का शिकार बना सकता है कोविड-19 की वजह से। तो अगर हम देखें कि क्या है वो स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो यानी कि इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जनरल पॉपुलेशन में डेवलप हो सकते हैं, तो उसमें हम जो है पहले हम ज़िक्र कर सकते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स की। इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 की वजह से जनरल पॉपुलेशन में डर पैदा हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है उनको, काफ़ी जल्दी एजिटेट हो सकते हैं, उनकी मूड में काफ़ी ज़्यादा स्विंग आ सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनमें वो यानी कि वो क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त करने की या सख्त नहीं रहती है, वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, ब्लेम करना एक कॉमन फिनोमेना हो जाता है लाइफ में ऐसे लोगों की। जनरल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इमोशनल नंबनेस इनमें पैदा हो सकती है, और ये इनको यानी कि कोप करने में डील करने में कोविड-19 के पैंडेमिक को डील करने में इनको मुश्किलात जो है दरपेश आ सकती हैं। जी। तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं जनरल पॉपुलेशन में कोविड-19 की वजह से। जैसे उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, उनकी एपेटाइट में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, उनके यानी कि उनके वेट में डिस्टर्बेंसेस पैदा हो सकती हैं, उनकी सेक्सुअल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। इसी तरीके से यानी कि कॉग्निटिव फंक्शंस यानी सोच, या यानी कि उनकी उनकी कैपेबिलिटी जो है अटेंशन, कंसंट्रेशन वगैरह, इनको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहते हैं। तो जनरल पॉपुलेशन में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कॉग्निटिव इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, यानी उनकी कॉग्निशन में इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें
यानी कि इम्पेयर्ड अटेंशन हो सकता है, वो अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक वो किसी चीज़ को अटेंड नहीं कर पाएँगे अगर उन पर कोविड-19 की वज़ह से असर पड़ता है। उनकी मेमोरी में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उनको उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उनको यानी कि उनको जो अलर्टनेस है वो काफ़ी हाइटेंड हो सकती है, यानी कि स्टार्टल रिस्पॉन्सेस उनको बहुत ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। उनको अगर पीछे से कोई ऐसे ही थोड़ा-सा थपथपी मार लेगा यानी उनके शोल्डर्स पर, तो उसकी वजह से वो बहुत अचंभे में आ सकते हैं, यानी स्टार्टल उनका बहुत शार्प हो सकता है। इसी तरीके से वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और उनको पुरानी ऐसी मेमोरीज़ जल्दी यानी उनको पुरानी मेमोरीज़ जो हैं वो जो कोई दुःख भरी मेमोरीज़ उनको होती तो वो बहुत ज़्यादा उनको याद आ सकती हैं। पुराना कोई लॉस हुआ हो तो वो उनको याद आ सकता है ऐसी सिचुएशंस में। इसी तरीके से जो है उनके सेल्फ एस्टीम में इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉग्निटिव इश्यूज़ जो जनरल पॉपुलेशन में पैदा हो सकते हैं कोविड-19 की वजह से, तो उनका ज़िक्र मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे किया। इसी तरीके से एक इंसान की यानी पर्सनैलिटी में इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी में, जैसे वो यानी इमोशनल आउटबर्स्ट उसमें आ सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पर वो काफ़ी रोना शुरू कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम हो जाती है। बात-बात पर आर्ग्यूमेंट्स करना, ये एक इंसान का जो है हर रोज़ का एक यानी कि एक कॉमन फिनोमेना बन सकता है एक इंसान की लाइफ में। इसी तरीके से एक इंसान जो है रिलैक्स नहीं कर पाता है, अगर उसके ज़हन पर कोविड-19 की वजह से असर पड़ जाएगा, तो ही और शी फेल्स टू रिलैक्स। इसी तरीके से वो अपने आप को सोशल सर्कल से अलग-थलग कर सकता है, क्योंकि उसको अब लोगों के साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, या उसको जो है लोगों के साथ बात करना बुरा लगता है। इसी तरीके से वो बाकी लोगों के साथ अच्छे से यानी कि उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। वो छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ सकता है। इसी तरीके से उसकी भूख में या तो इज़ाफ़ा हो सकता है या तो कमी आ सकती है। इसी तरीके से उसकी सेक्सुअल इंटरेस्ट में या तो इज़ाफ़ा हो सकता है या तो ज़्यादातर कमी ही होती है। इज़ाफ़ा नहीं होता है, कमी ही होती है। इसी तरीके से ये लोग जो हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी किसी ड्रग अब्यूज़ का शिकार थे, तो इनमें वो ड्रग अब्यूज़ फिर से बढ़ सकता है कोविड-19 की स्ट्रेस की वज़ह से। तो यानी कि इस तरीके से इनमें कई सारे ऐसे यानी रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स एलिवेट हो सकते हैं जो शायद इनमें अभी तक नहीं थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ये अभी तक अगर इनमें नहीं था, तो जनरल पॉपुलेशन में ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट हो सकता है कोविड-19 के स्ट्रेस की वज़ह से। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यानी जनरल पॉपुलेशन में जो है यानी सोमेटाइज़ेशन की शिकायतें बढ़ सकती हैं। सोमेटाइज़ेशन से मुराद मेरी ये है कि इंसान जो है यानी बॉडी एक्स और पेन्स की शिकायत करता है, जिसके लिए कोई फिज़ियोलॉजिकल बेसिस नहीं होगी। वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर या फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट को या जनरल फिजिशियन को उसके एक्स और पेन्स के लिए जो है कोई बेसिस नहीं मिलेगी। तो ये भी देखा जा सकता है जनरल पॉपुलेशन में कि वो यानी सोमैटिक सिम्पटम्स का शिकार हो सकते हैं। इसी तरीके से जनरल पॉपुलेशन जो है सुसाइड का शिकार हो सकते हैं। सुसाइड रेट्स या सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ सकती है जनरल पॉपुलेशन में बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द अनसर्टेनिटी क्रिएटेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। इसी तरीके से जो है जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था कि जनरल पॉपुलेशन में सब्सटेंस अब्यूज़ के बढ़ने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पर अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे उन लोगों को हो सकती है जो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वज़ह से या फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स की अनअवेलेबिलिटी की वज़ह से उनमें विथड्रॉल सिम्पटम्स पैदा हो सकते हैं। उनमें यानी सब्सटेंस अब्यूज़ के रिलेटेड सीज़र्स पैदा हो सकते हैं, अगर उनको सब्सटेंसेस या उनको ड्रग्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए मतलब यहाँ से कोविड-19 के लॉकडाउन की वज़ह से वो इन इश्यूज़ को विथड्रॉल इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स के पास भी नहीं पहुँच सकते हैं कभी-कभार। तो ये उनके लिए उनकी ट्रबल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसी तरीके से जनरल पॉपुलेशन में एक और चीज़ भी हो सकती है, वो ये कि घर पे बैठने की वज़ह से और पूरा दिन
یعنی انٹرنیٹ اور ٹی وی کے سامنے رہنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ یوز کرنے یا ٹی وی واچ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے ٹیکنالوجی ایڈکشن ہو سکتی ہے. ٹیکنالوجی ایڈکشن سے مراد میری یہ ہے کہ مطلب وہ ہک ہو سکتے ہیں. ان کو اگر فار ایگزامپل انٹرنیٹ 5 منٹ کے لیے بھی جو ہے اس میں سگنل میں کوئی پرابلم آ جائے تو ان کو موڈ سوئنگس آنے لگ سکتے ہیں، وہ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، ان کو اینزائٹی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ایڈکشن کی نشانی ہو سکتی ہے کہ مطلب جب یعنی کہ ان کا ٹی وی میں کوئی پرابلم ہو جائے یا انٹرنیٹ اویلیبلٹی میں کوئی پرابلم ہو جائے. جب ایک انسان کافی بینج کرتا ہے انٹرنیٹ کو یا ٹی وی کو بینج کرتا ہے، یعنی کافی کنزیوم کرتا ہے اپنے ویکنگ آورس میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو وڈرال جیسی سمٹمز پیدا ہو سکتے ہیں ان دا ایبسنس آف دیز ریسورسز، دیز آن لائن ریسورسز. جی تو اس طریقے سے میں نے جو ہے ایک رف پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کی کہ کووڈ 19 پینڈیمک کی وجہ سے جنرل پاپولیشن پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں ان کے ذہن پر.